आई हैव बीन टोल्ड कि मतलब टफ होगा, पर अपन को घबराना नहीं है, जैसा जैसा हो रहा है करते जाओ, सीखते जाओ, नहीं हो रहा है बार बार देखो। आई थिंक में तो बहुत सारे रिजेक्शंस मिले थे। Whenever somebody is not absorbed in the process totally, then they tend to focus so much on the goal that they lose it. उनको उसी प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए rather than the result। मतलब Hi everybody, my name is Anup Garg. I'm one of the co-founders here at Programming Pathshala. And one of the questions that we have to ask ourselves again and again as a startup is that why are we doing this? So many times there are, so many tech startups are out there, but why are we doing what we are doing? And stories like this that we are going to have today, they propel us ki there is a lot more to be done. There is a lot more to be achieved. There is a lot more of people to be reached out. So we welcome Anamika. We are meeting Anamika today, and probably she'll give her small introduction, and then we can start. yeah, so I have done MCA. Firstly, I have done PSC, and I have done then MCA, and the like last year of my MCA, I have started coding. So focusing on coding. So I have just started that, and after that, I have been told by my friend that in 4 to 5 months I will be able to clear TCS. So I just believed that, and after that, and it happened also. So yeah, I have cleared that, and after a month or two, I came to know about Programming Pathshala, and after that, I have joined Programming Pathshala, and then I have joined Bharat Pay, and now I'm working in Arcesium. Nice. तो एक बार बचपन से शुरू करते हैं अनामिका। बचपन में कैसे हुआ करता था? मतलब बचपन में क्या कहाँ पे पढ़ाई की, कौन से स्कूल में, कौन सी जगह पे, और वहाँ पे पढ़ाई में तुम कैसे थे? क्या सपना हुआ करता था, क्या करना है, वैसा बचपन के बारे में बताओ थोड़ा। 10th से पहले तक कैसे रहता था? अच्छा, तो 10th के पहले तक इज जस्ट लाइक नॉर्मल। आई वाज स्टूडियस, ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ती नहीं थी, एंड बट नॉर्मल ही था, जितना मुझे बोला जाता था बस उतना पढ़ना है एंड उतना करना है, सो उतना था। एंड आफ्टर दैट जब 12th हो गया, एंड देन उसके बाद क्या करना है, सो one of my teachers suggested do BCA, then MSc, and then start teaching in some college or some school. So I was like, okay, ठीक है, ये करते हैं। So I have started doing BSc, and after that I was thinking like what to do after that. While I'm preparing for BSc, I have started preparing for some governmental exams also. So वो भी prepare किया, and then उसके बाद BSc हो गया, and then I have to decide what to do next because I don't want to sit at home. And therefore I have decided to go with the MCA. There was no purpose of choosing it at that time, but I have just chosen it, and then फिर MCA हुआ। उस time भी I was preparing for governmental exams only. So 1 year have been passed, and in the last year I thought ki my friend told me ki you just start coding and it will happen, and if you want to do something else you can do it after that also. So I was like, okay, we can do this also, because there are some issues with the family also, and I wanted to do something. So yeah, I have just started then, and yes. तो पहले एमसीए किया, उसमें भी कुछ ऐसा क्लैरिटी नहीं था कि क्या करना है आगे, और एमसीए से पहले बीएससी किया। हाँ, तो हाँ, एमसीए भी मतलब एमसीए बस ज्वाइन कर लिया था, एंड मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स का ही प्रिपेयर कर रही थी, ठीक है। तो उस टाइम बस ज्वाइन किया था कि घर पे नहीं बैठना है मुझे, बस तो कुछ ना कुछ जाना है कॉलेज, तो इसलिए मैंने कर लिया कि चलो ठीक है एमसीए कर लेते हैं। फिर उसके बाद मतलब एमसीए का 1 ईयर पास हो गया, उसके बाद ये डिसाइड किया कि नहीं यार चलो अब इस फील्ड में जाते हैं। तो जब प्रोग्रामिंग पाठशाला के बारे में पता चला तो आई थॉट कि चलो ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ सीखने ही मिलेगा, बिकॉज उस टाइम पे ये होप भी नहीं था कि कुछ होगा नहीं होगा, ऐसा सोच भी नहीं रहे थे। तो या सो आई हैव डिसाइडेड कि चलो ज्वाइन करते हैं, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही। तो ऐसे ज्वाइन कर लिया, फिर पढ़ते गए, एंड उसके बाद जब टीसीएस की ज्वाइनिंग में लेट होने लगा, देन आई हैव टोल्ड यू लाइक आई वांट टू वर्क समवेयर एंड प्लीज गिव मी रेफरल, एंड या एंड आफ्टर दैट भारत पे हैपेंड। एक बात ये और बताओ अनामिका, कि कॉलेज में क्या क्या सीखा? मतलब कॉलेज में कैसा था लर्निंग? वहां पे मुश्किल पढ़ाई थी या आसान था? कॉलेज में क्या क्या सीखा बीएससी में, एमसीए में?
अच्छा, कॉलेज का बीएससी का मैं बताती हूँ। तो बीएससी में मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है सीरियसली। बस एग्जाम्स के 2-3 दिन पहले जब जो भी पढ़ना रहता था वो पढ़ लेती थी एंड क्लासेस में जाके बैठ जाते थे। मतलब इतनी सिंसियर नहीं थी मैं कॉलेज में, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो जो चल रहा है चल रहा है। एंड हाँ, एग्जाम्स के लिए अदर एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ाई करती थी, जैसे अगर कोई भी एसएससी है या जो भी है उसके लिए आई वाज प्रिपेयरिंग। So हाँ, and then MCA में भी MCA में I don't used to go school, sorry college daily. तब कभी कभी चले गए तो it is like that only. So MCA बहुत ज़्यादा नहीं गई थी school, and that's why I was able to focus on that Renaissance course only. प्रोग्रामिंग पाठशाला ज्वाइन करने से पहले तुम्हें कितना कोडिंग आता था, लाइक कितना मतलब कोड करना कितना आता था, या फिर कितना कोडिंग कर पाते थे उससे पहले, लैंग्वेजेस या फिर कुछ भी? तो उसके पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, बट मतलब मेरा कोड देख के कोई भी समझ सकता था कि कितनी सिंटेक्स में एरर होती थी। मतलब पूरा फ्रेम नहीं कर पाती थी थिंक। बेसिक चीजें आती थी कि लाइक फॉर लूप पता है, व्हाइल लूप पता है, ये सब चीजें पता है, बट बस पता थी लाइक हाउ टू इम्प्लीमेंट इट एंड हाउ टू डू इट। आई वाज नॉट नोइंग ऑल दीज। और प्रोग्रामिंग पाठशाला में आने के बाद टफ लगा? जब तुमने कोर्स ज्वाइन किया था तो तुम्हें टफ लगा था? कैसा लगा था उस टाइम? उस टाइम ये था कि वो तो मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं आता है। सो ठीक है, तो ये मुझे पता ही था, तो मुझे पता था ऑब्वियसली टफ तो होगा ही। सो इसीलिए आई हैव बीन टोल्ड कि मतलब टफ होगा, पर अपन को घबराना नहीं है। जैसा जैसा हो रहा है करते जाओ, सीखते जाओ, नहीं हो रहा है बार बार देखो। सो तो यही स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी कि अगर एक बार में चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो उसको बार बार देखो एंड उसको सर्च करो जितना ज्यादा पढ़ सकते हो। सो ढेर सारी प्रैक्टिस की थी। जस्ट टफ तो लगा था मुझे। और फिर बाद में मतलब कैसा, मतलब मुझे याद है कि आई थिंक तुम्हारे बैच में सबसे पहले तुम लोगों का तुम्हारा ही रेफरल डालना शुरू किया था। तब तुमने मुझे एक मैसेज किया था जब टीसीएस की ज्वाइनिंग लेट हो गई थी। तो तब तक इतना कॉन्फिडेंस आ गया था क्या कि इंटरव्यूज निकाल पाओगे, या फिर कैसे रहता था? उस टाइम भी मुझे कॉन्फिडेंस तो नहीं था, बिकॉज मॉक वगैरह भी नहीं दे रही थी, तो कॉन्फिडेंस तो नहीं था। बट फिर जब फर्स्ट इंटरव्यू दिया तो आई थॉट कि अच्छा गया, बट देन इन द फीडबैक आई हैव रिसीव्ड दैट इट वाज नॉट गुड, यू हैव टू सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस इन 45 मिनट एंड यू मतलब मैंने थोड़ा देर में किया था। तो उस टाइम उसके बाद मैं बहुत सैड हो गई थी, लाइक आई हैवंट डन गुड, बट आफ्टर दैट आई हैव रिसीव्ड दैट या आई हैव डन गुड। तो तुम्हारे मॉक एंड इंटरव्यूज फिर हुए क्या यहाँ पे? हाँ, मॉक इंटरव्यूज हुए थे उसके बाद। मतलब जैसे आया था उसके रिसेंटली, मतलब 2-3 दिन पहले ही मैंने मॉक शेड्यूल करवाया था। एंड अच्छा, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद भारत पे में कैसे सिलेक्शन हुआ, वहां पे क्या रहा? तो वहाँ पे आपने रेफरल दिलवाया था एंड देन उसके बाद 2 कोडिंग राउंड्स हुए थे एंड उसके बाद ये सिलेक्शन हो गया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो भारत में काम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या बनाया वहां पे? कौन सी टीम में काम किया? कैसा रहा? तो वहाँ पे बेसिकली एक भारत पे पॉज मशीन होती है, उस पर मैंने वर्क किया था। एंड एक भारत पे स्पीकर होता है, लाइक आप क्यूआर ट्रांजेक्शन करते हो तो स्पीकर बोलता है लाइक यू हैव रिसीव्ड दिस मच अमाउंट। सो मैंने उस पर इन दोनों प्रोजेक्ट्स में काम किया था वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या क्या सीखा वहां पे? कौन से फ्रेमवर्क सीखे? सो मुझे याद है शायद मैं शुरुआत में काफी प्रॉब्लम भी हो रही थी वो हाँ फ्रेमवर्क सीखने में। हाँ। हाँ, लाइक शुरुआत में तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या है। सो पहले के डे टफ थे, बट वहाँ पे लाइक बहुत ज्यादा हेल्प करी मैंने, मेरी कई लोगों ने, कई मेंटर्स ने। सो वो बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट था। एंड उस टाइम वर्क फ्रॉम होम भी नहीं था, तो आई थिंक दैट हैज हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज उनके साथ ही बैठते थे तो ज्यादा सीखने मिल जाता था कि ऐसा ऐसा है। तो या एंड वहाँ पे जावा एंड स्प्रिंग बूट मेनली यूज हुआ था। तो फिर अभी अभी इंटरव्यूज के क्या क्या एक्सपीरियंस रहे वहां पे? कहाँ पे इंटरव्यूज दिए? कैसा एक्सपीरियंस रहा? और सो हाँ, बेसिकली जब तो भारत पे में हो गया था तो आई हैव स्टॉप्ड डूइंग कोडिंग। आई हैव फाइनली स्टॉप्ड इट, लाइक आई हैवंट डन फॉर 4 to 5 months, but later on I have realized like in May or June that no, I have to start it. So I have again started from scratch, मतलब फिर से स्क्रैच से स्टार्ट किया, वीडियोस देखना एंड असाइनमेंट होमवर्क सॉल्व करना। तो जब नवंबर में अप्लाई किया तो रेफरल कई सारे लोगों से लिया, प्रोग्रामिंग पाठशाला में जो फ्रेंड्स थे उनसे लिया, बट हुआ नहीं मेरा। उसके बाद आई हैव गॉट ऑफर फ्रॉम पेटीएम एंड उसके बाद आई थिंक उसके बाद एक कैप्टन फ्रेश थी, वहां मिला था। एंड उसके बाद डिलीवरी से भी लाइक ऑफर नहीं मिला था, बट आई गॉट सिलेक्टेड। एंड देन चार्ज बी से एंड आरसीसीएम से। सो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन। नाइस 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 नाइस। कोई कोई मेजर लर्निंग जो थ्रू आउट अभी तक के प्रोसेस में हुआ हो,
या फिर जैसे कि बहुत सारे फेलियर्स भी मिले, बहुत सारे टफ टाइम्स भी मिले और बहुत सारा सक्सेस भी मिला, तो उसमें कोई लर्निंग या फिर कुछ भी ऐसा एडवाइस जो लोग अभी कोर्स कर रहे हैं, अभी लोग पढ़ रहे हैं, उनको यू वांट टू गिव? हाँ, वन थिंग आई वांट टू गिव कि एक जब भी आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो, जस्ट डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट. मतलब whenever I have also thought about result, ऐसे नहीं I haven't thought, but when I have started at the beginning only, so that time I didn't have any goal, you can say. I have just started like I have to learn and that's it. So don't like you must have goal. ऐसा नहीं है कि goal नहीं होना चाहिए, but हमको उसकी process पे ज्यादा focus करना चाहिए rather than the result. Wow, I think ये बहुत important learning है, because that is what I have also seen कि throughout right. तो वो एक बहुत ही important learning है. How was your experience with Programming Pathshala as a whole? Like, so it was amazing experience. Like the mentor here are very good. So like Vivek sir, like the way he explain, like जैसे वो एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत अच्छा है. लाइक एक बार में ही समझ में आ जाता है, मतलब मुझे समझ में आ गया तो सबको आ जाता है. ठीक है, ऐसा था. हाँ, तो एंड फिर भरत सर का वो पढ़ाते तो अच्छी थी, बट एक और मुझे एडवांटेज मिला कि जब भी कोई एरर आती थी उनको भेज देती थी, सर ये हो रहा है, ही जस्ट हेल्प मी टू रिजॉल्व इट. सो ये बहुत अच्छा पार्ट था मेरे लिए. Anything else that you want to share or talk about before we close this session? ओके, व्हेन आई हैव फर्स्ट स्टार्टेड तो मेरे पास कोई गोल नहीं था, ये नहीं था कि करना है, बट धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए देन यू विल फील लाइक एक चेंज हुआ, मतलब कॉन्फिडेंस में, यू कैन से. एक पहले कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था, बट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट. लाइक इफ आई एम हियर, सो लाइक इफ आई एम अज्यूमिंग दैट मैं वहाँ, आई कैन अज्यूम दैट मैं वहाँ जा सकती हूँ, आई कैन रीच देयर. सो ये बहुत मेजर डिफरेंस था. मतलब ये सब में आ सकता है, ऐसा नहीं. and people doubt करते हैं कभी कभी कि like if I can go there or not, but everyone can go there. and ये confidence आना ही बहुत important चीज है, क्योंकि starting में confidence ही नहीं होता है. so अगर ये confidence ही आ जाए then you can achieve anything, but you have to work for it. मतलब एक simple rule बना लिया है कि I want to achieve it, but मतलब work नहीं करेंगे तो I won't be able to achieve it. so बस ये दो मेजर लर्निंग थी कि प्रोसेस में फोकस करना एंड जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है वो बहुत अमेजिंग है. तो या वेरी नाइस. तो हम लोग कभी कभी वी टॉक अबाउट कि हमारा प्रोग्रामिंग पाठशाला का विजन क्या है. तो हमारा जो विजन स्टेटमेंट है वो भी यही है, टू हेल्प पीपल बी कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स. ये प्रोग्रामिंग पाठशाला का विजन स्टेटमेंट है फॉर इनसाइडर्स, फॉर एवरीबडी. दैट इज द पर्पस वी आर ट्राइंग टू डू व्हाटएवर वी डू. सो that is the goal somewhere. So in your case it has achieved its goal. The process achieved its goal. Great, amazing. So thank you so much, Anamika, for your time. Thank you so much for sharing your experience. I think both of these learnings are very important, being process oriented and developing that confidence, and that confidence comes with this process of developing. yes. Great then. Thank you so much. See you again. Yeah.